very warm welcome to all the students who are watching this video. We already discussed about the chapter about the traders, kings and pilgrims. We have done Silk Route, we have done traders, we have done about the Buddhism, we have this all are completed. Now the topic is a quest of the pilgrims. Okay, today we will complete pilgrims. Basic question rises here. What is the pilgrims? Who is the pilgrims? Okay, they believe in different sects. Okay, they believe in different sects, and pilgrims are the people who believe in different sects and visit the holy places. Okay, for example, Hindu used to go in temples. Christians go to the church. Okay, so pilgrims are the people who visit the holy places. They undertake men and women journey to holy places and in order to offer worship. हम जहाँ पे पूजा करने जाते हैं, हम जहाँ पे प्रार्थना करने जाते हैं, हम उस जगह को pilgrims कहते हैं. The base name known of this the Chinese pilgrims at that time in Buddhist period was a Fajian who came to the subcontinent about 1600 years ago. Fajian. ये 1600 years ago. Fajian was an important pilgrims of the Buddhist period. Okay, and after that Zhuanzhen, he came 1400 years ago. And the third one is I Queen. These are the famous pilgrims of the Buddhist period. Fajian, Zhuanzhen, I Queen. There is a story about the Fajian. Okay, ये सी के थ्रू होकर के जाते थे different places पे. I will discuss later. First, Zhuanzhen and I King who came into 50 years after Zhuanzhen. ठीक है, Zhuanzhen के पास 50 साल बाद I King आए थे and they came to visit places associated with the life of Buddha. ये उस जगह को देखने आए थे जो कि जगह एसोसिएटेड था बुद्धा का. They visited different places that is related to the Buddha as well as the famous monasteries where the monks lived, monasteries where the Buddha's statue is installed. Okay, and each of these pilgrims left an account of his journey. सबकी अपनी अपनी story है. They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them. इनके साथ different stories है. बताऊंगी मैं आगे different stories है जिसमें इन्होंने बताया है कि इनकी लाइफ में कितनी कठिनाइयां आई हैं इन्होंने जब ट्रैवल करी है. जो इन्होंने बुक अपने साथ लेकर के आए थे, इन्हें कितनी परेशानी हुई. आई विल स्टार्ट विद फाजियान. फाजियान के बारे में ये था कि एक बार ये सी के थ्रू जर्नी कर रहे थे from Bengal. Okay, and he boarded a ship belonging to some merchants. They had very traveled for 2 days when they were caught in a storm. और ये बहुत भयंकर तूफान में फंस गए थे. The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ships from sinking. उन्होंने मर्चेंटाइज को फेंकना शुरू कर दिया ताकि जो शिप पे लोड कम हो सके और शिप डूबे ना. ओके, एंड फाजियान थ्रू अवे हिज मेगर पर्सनल बिलोंगिंग्स. जो भी उनके पास उनकी चीजें थी खाने पीने की, उनके कपड़े, जो भी जो ट्रैवल में लोग कैरी करते हैं, उन्होंने भी फेंक दिया था समुद्र में ताकि कि शिप थोड़ा हल्का हो जाए. बट उन्होंने स्टैचू, बुद्धा का स्टैचू और एक किताब को बहुत जोरों से खुद में पकड़ा हुआ था. किसकी किताब? बुद्धा की किताब और उनके स्टैचू को जो उन्होंने कलेक्ट किया था अपनी लाइफ में, उसको उन्होंने पकड़ा हुआ था. बाकी चीजें तो उन्होंने फेंक दी, बट बुद्धा का स्टैचू और बुक्स नहीं फेंका. द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days. जो स्टॉर्म था जो सब्सिडाइज हुआ था 13 दिन बाद. ओके, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स द सी. फाजियान ने सी को डिस्क्राइब किया है. उन्होंने बताया है कि जो भी उन्हें लाइफ में कितनी परेशानियां आई थी, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है. The sea itself is a boundless in extent. We all know that. Sea itself is a boundless. There is a no boundary. It is impossible to know east or west
except by observing the sun, moon or stars in their motions. Okay, if it is a dark rainy weather, the only plan is to steer by the wind. उस समय क्या होता था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, 1600 साल पहले की बात हो रही है। तो उस समय क्या था कि लोग चांद को देख के समझते थे कि हाँ अंधेरा हो गया, रात हो गई, सूरज निकला है, सुबह हो गई है। तो वो उनके पास को डायरेक्शन देने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पाते थे, तो इन्हें बहुत परेशानी होती थी। ओके, सो इट टुक हिम ओवर द 90 days टू रीच जावा, ही हैव टू गो जावा, और उन्हें 90 दिन लग गए थे, 90 दिन लग गए थे उन्हें, इट मीन दैट 3 months to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. वहां वो 5 महीने रुके दूसरी जगह जाने से पहले जहां उन्हें चाइना जाना था। ओके, ट्राई एंड ये फाजियान ने अपनी स्टोरी बताई है कैसे उन्होंने तूफान का सामना किया, बट हाउ ही लव्ड बुद्धा। यहाँ पे ये जता रहा है कि उन्होंने बुद्धा के वो फॉलोअर थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे, और उन्होंने कितना, एज आई टोल्ड यू, दे आर द 3 important pilgrims of the Buddhist period. So these are the now जुआनजिंग के बारे में we have done it. Now the Juanzhang 1400 years ago में ये आए थे, and the Juanzhang who took the land route. दोनों में यही differences है, a major differences between the two pilgrims is he opted for to sea route and he opted to land route. Okay, he opted to land route and to China through the northwest and central Asia के होते हुए इन्होंने चाइना जाना था, and carried back with him a statue of the Buddha made of gold, silver and sandalwood, over 600 manuscripts loaded on the back of 20 horses. उन्होंने सोने चांदी हीरा जवाहरात से जो स्टैचू बनी थी बुद्धा की उसको लिया। ओके, 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स लिया on the back of 20 horses, 20 घोड़ों के ऊपर उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी रखी। ओके, where of which he was crossing the Indus capsized. वो इंडस को क्रॉस किए। He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकेंड टाइम में बुद्धिस्ट के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने संस्कृत में सारी चीजें लिखना शुरू कर दी थी, एंड दैट मैन्युस्क्रिप्ट जुआनजिंग ने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था, किसमें, चाइनीज में। ओके, उनको ये चीज उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, बची हुई जितनी जिंदगी थी, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने में चाइनीज लैंग्वेज में स्पेंड किया है। हम नालंदा के बारे में पढ़ रहे हैं। नालंदा इज इन बिहार। बिहार, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। नालंदा के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि नालंदा जो था, अ वेरी हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन था नालंदा में। सबको अलाउ नहीं होता था यहाँ स्टडी करना। ओके, नालंदा के बारे में ये था कि यहाँ पे जो जुआनजिंग एंड अदर पिलग्रिम्स थे स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा बिहार, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ दैट पीरियड। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट। जुआनजिंग ने बताया है नालंदा के बारे में कि बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे वो उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है स्टडी करने में। बिहार में ये जगह द मोस्ट फेमस मोनास्ट्री है ये इस पीरियड का। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। ओके, now the teachers are men of the highest ability and talent. जो teachers थे बहुत ज़्यादा highly educated थे, they are very professional in their education. Okay, they follow the teaching of Buddha in all sincerity. वो बुद्धा की जो टीचिंग थी ना उसको बहुत ज़्यादा सिंसियरली उन्होंने अपनाया था अपने जीवन में। The rulers of the monastery are strict and everyone has to follow them. जो रूलर्स थे मोनास्ट्री के, जो दैट द प्लेस इट इज इन नालंदा, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और सबको ये रूल्स जो लगाए हुए थे सबको फॉलो करनी थी। ओके, डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। डिस्कशंस होती रहती थी चीज़ों पे, जो भी चीज़ें थी मैटर्स पे, और छोटे बड़े सब इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। ओके, एंड लर्न मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट। जो भी लोगों को बुद्धा को लेकर के कोई डाउट होता था, लोग यहाँ आकर के अपने डाउट को क्लियर करते थे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब नालंदा में जब लोग जाने की कोशिश करते थे यहाँ पे,
तो क्या होता था कि जो गेट कीपर हुआ करता था, ही आस्क्ड सम क्वेश्चन, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते थे, 10 क्वेश्चंस होते थे, और जो उस सवाल का जवाब देता था उन्हीं को जाने के लिए एंट्री मिलती थी. Okay, they have not been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. तो जो 7 या 8 सवाल होते थे उनके हर कोई जवाब नहीं दे पाता था. Now the question I will ask to you, list the reasons why Zhuanjing wanted to study in Nalanda. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जुआनजिंग जो थे वो नालंदा में क्यों पढ़ना चाहते थे. ओके, यू हैव टू लिस्ट द रीजंस. आज हम इसको यही खत्म करते हैं. पिलग्रिम्स हमारा कंप्लीट हो चुका है. हम आगे करेंगे द बिगिनिंग ऑफ भक्ति. थैंक यू.